آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ۔ وزیر اعظم آج دوپہر 3 بجے آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام میں عوام سے براہ راست مخاطب ہوں گے۔ وزیر اعظم ٹیلی فون کالز اور سوشل میڈیا پیغامات کے ذریعے عوام سے مخاطب ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات بختیار چودھری فواز جانکاری۔ سندھ حکومت کا 8 اگست تک نافذ لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان۔ ڈبل سواری اور پرائیویٹ گاڑیوں میں 2 افراد کی پابندی ختم۔ دودھ، دہی اور بیکری شاپ 24 گھنٹے کھلی رہیں گی۔ ریسٹورینٹ کو ہوم ڈلیوری کی اجازت ہوگی۔ برآمدی شعبے کے ساتھ دیگر پیداواری شعبے اور ضروری خدمات سے وابستہ صنعتیں بھی کھلی رہیں گی۔ سندھ میں وفاق کے زیر انتظام شعبے ایس او پیز کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ فضائی آپریشن معمول کے مطابق ریلوے میں 70% مسافروں کی اجازت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور متعلقہ سروسز جاری رہیں گی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر۔ سندھ میں صنعت اور ٹرانسپورٹ کی بندش کے بارے میں فیصلوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ آج این سی او سی کے اجلاس میں سندھ حکومت ان تمام معاملات پر تفصیلی مشاورت کرے گی۔ ایسی حکمت عملی وضع کرنا ہوگی جس سے عوام کی صحت اور روزگار کا دفاع ممکن ہو۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر میں تیزی۔ مثبت کیسز کی شرح 8.82% تک پہنچ گئی۔ 5026 نئے کیس رپورٹ۔ مزید 62 افراد جاں بحق۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 23,422 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 56,965 ٹیسٹ کیے گئے۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو دنیا سراہتی ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے تمام افغان دھڑوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ افغانستان میں امن چاہتے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی۔ امریکہ کے مشیر قومی سلامتی کے ساتھ افغانستان میں امن، پاک امریکہ تجارت اور دفاعی تعاون کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ مشیر قومی سلامتی منیب یوسف کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس۔ افغانستان میں طالبان نے تقریباً 200 اضلاع پر قبضہ کرنے کے بعد بڑے شہروں کا رخ کر لیا۔ 4 صوبائی دارالحکومتوں ہرات، ہلمند، غفار اور قندھار میں شدید لڑائی۔ ہرات ایئرپورٹ کا بھی محاصرہ۔ طالبان پر امریکی فضائی حملوں کی بھی اطلاعات۔ جنگ زدہ علاقوں میں بجلی، موبائل فون سروس اور تعلیمی ادارے بند۔ ہزاروں لوگوں کی نقل مکانی۔ سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری کا پلوامہ میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوجوانوں کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار۔ سوپور کے علاقوں وادپورہ، جانگرپورہ اور جاٹکلا میں قابض فورسز کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں شدت اور اضافے پر شدید تشویش۔ مودی حکومت کے کشمیر پریمیئر لیگ کو ناکام بنانے کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کو لیگ میں شرکت پر بھارت میں داخلہ بند کرنے کی دھمکی۔ کوریج کے لیے آنے والے 80 پروفیشنلز کو بھی ڈرانے کی کوشش۔ بھارت کی جانب سے غیر ملکی کھلاڑیوں کو کے پی ایل میں شرکت سے متنفر کرنا قابل مذمت ہے۔ شہریار آفریدی اور کشمیر پریمیئر لیگ کے عہدیداروں کی نیوز کانفرنس۔ گیانا میں دوسرا T20 میچ۔ پاکستان کی ویسٹ انڈیز کو 7 رنز سے شکست۔ 4 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ بابر اعظم کے 51 اور محمد رضوان کے 46 رنز۔ پاکستانی بالرز کی شاندار بالنگ کے باعث ویسٹ انڈیز 158 رنز کا ہدف حاصل نہ کر سکا۔ تیسرا T20 میچ آج گیانا میں ہی کھیلا جائے گا۔ سیریز ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست۔ وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا۔ ایک سال میں سب سے زیادہ T20 انٹرنیشنل رنز بنائے۔ محمد رضوان نے 14 اننگز میں 752 رنز بنا کر آئرلینڈ کے پال سٹرلنگ کا ریکارڈ توڑا۔ سٹرلنگ نے 2019 میں 20 اننگز میں 748 رنز بنائے تھے۔ اور ٹوکیو اولمپکس کے میڈلز ٹیبل پر 3 سرے فہرست۔ چین کے 12 طلائی، 13 چاندی اور 12 کانسی کے تمغے۔ امریکہ 19 سونے، 20 چاندی اور 13 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ میزبان جاپان کو 17 سونے، 5 چاندی اور 8 کانسی کے تمغوں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل۔ ٹوکیو اولمپکس دیکھیے پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाज़िया कंवल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। तफसीली खबरों के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान आज दोपहर 3 बजे आपका वजीर आजम आपके साथ प्रोग्राम में अवाम से बराह रास्त मुखातिब होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा है कि वजीर आजम इमरान खान टेलीफोन कॉल्स और सोशल मीडिया पैगामात के जरिए अवाम से मुखातिब होंगे। और नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने आज से 8 अगस्त तक नाफिज लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। डबल सवारी पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। प्राइवेट गाड़ियों में 2 अफराद की पाबंदी भी हटाने का फैसला किया गया है। दूध दही की दुकानें और बेकरियां 24 घंटे खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे होम डिलीवरी की इजाजत होगी। मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। महकमे दाखिला सिंध की जानिब से तरमीम करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत ने सूबे भर में लॉकडाउन के निफाज में नरमी का ऐलान किया है, जिसके तहत दूध दही की दुकानों और बेकरी को 24 घंटे खुले रखने की इजाजत दी गई है, जबकि रेस्टोरेंट्स की जानिब से भी 24 घंटे होम डिलीवरी जारी रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डबल सवारी पर पाबंदी और प्राइवेट गाड़ियों में भी 2 अफराद की पाबंदी का इतलाक खत्म कर दिया गया है। चिंची रिक्शा और टैक्सी अपनी गुंजाइश के मुताबिक मुसाफिरों को बिठा सकेंगे, जबकि इंटरसिटी बस सर्विस वैक्सीनेशन सेंटर तक चलती रहेंगी। बरामदी शोबे के अलावा दीगर मैन्युफैक्चरिंग और पैदावारी शोबों की जरूरी खदमात से वाबस्ता सनतों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। तहम इन इदारों के मालिकान और मुलाजमीन को वैक्सीनेशन कराना लाजमी है। अगर कोई रेस्टोरेंट इंडोर डाइनिंग करा रहा होगा, कोई शादी हॉल समाजी तकरीब शादी ब्याह की तकरीब करा रहा होगा, उसको सील किया जाएगा। हम चाहते हैं कि अगले 9 रोज लोग घरों से बाहर निकलें तो एक ही मकसद के लिए निकलें, और वो है वैक्सीन लगवाने के लिए। जो एग्जेम्प्टेड इदारे हैं उनको काम करने की इजाजत है। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोई सूबा अकेला ये फैसला नहीं कर सकता कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाया जाए। सूबे सिंध में SOPs पर अमल दरामद करने के बजाय कारोबार बंद किया जा रहा है। गवर्नर सिंध का कहना था कि SOPs पर अमल दरामद के लिए गवर्नर और विफाक की तरफ से हर तरह की मुआविनत को यकीनी बनाया जाएगा। हम मदद करने को तैयार हैं। हम इस कोविड की सिचुएशन में जो कुछ बन पड़ेगा वफाक करेगा। फर्ज है वफाक का अपने सिंध के लोगों की मदद करना, और वो कर रहा है। वैक्सीन 100% वैक्सीन वफाक ने खरीदी। ये मानसून के सीजन के लिए 35 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है, वो 3 नालों के ऊपर, और फिर सुनने को मिलता है कि जी कोई पैसा किसी ने नहीं दिया। मैं तो हैरान इस चीज पर हूं कि जितनी आप कोशिश करें मदद करने की, जितनी कोशिश करें साथ चलने की, जितनी कोशिश करें मिल के चलने की, मैंने वजीर आला को मैंने उन्हें कॉल करके, और ही अग्रीड विद माई आइडिया, मैंने उन्हें कॉल करके कहा कि कम से कम जो इंडस्ट्रीज जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई हुई है 100% अपने लोगों की, अपने स्टाफ की, कम से कम उनको तो इजाजत दें। उनको इस लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं? कराची समेत सूबे भर में लॉकडाउन के पहले रोज कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, जबकि दूध दही और अशिया खुर्दनोश की दुकानें अपने मुकर्रर वक्त तक खुली रहीं। सूबे में तफरीही मुकामात, पार्क, जिम्स, शादी हॉल समेत रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, जबकि होम डिलीवरी सर्विस जारी रखने की इजाजत दे दी गई है। कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में भी लॉकडाउन रहा। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। केसेस मुस्बत आने की शरह बढ़कर 8.82% तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस के मजीद 5026 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 62 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद बढ़कर 23,422 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 56,965 टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कुछ सेक्टर्स को दिए गए इस्तिस्ना के अलावा विफाक के ज़ेरे इंतजाम दीगर शोबे भी SOPs के साथ काम करते रहेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि सिंध में सनत और ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बारे में फैसलों पर नजरसानी की जरूरत है। हमने अपने नुक्ता नजर से सिंध हुकूमत को आगाह किया था, जिसकी बुनियाद पर की गई जुज़वी तब्दीली खुश आइंद है। तफसील नमरा सोहेल से।
NCOC के मुताबिक हिफाजती तदाबीर पर अमल करते हुए फजाई ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ अपना ऑपरेशन जारी रखेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इससे मुतालिका सर्विसेज भी मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। वफाक के ज़ेरे इंतजाम दफातर में अमले की तादाद को कम से कम और SOPs के मुताबिक फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की गई हैं। NCOC के सरबराह और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि सिंध में सनत और ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बारे में फैसलों पर नजरसानी की जरूरत है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमने अपने नुक्ता नजर से सिंध हुकूमत को आगाह किया था, जिसकी बुनियाद पर की गई जुज़वी तब्दीली खुश आइंद है, लेकिन अभी भी मजीद तरमीम की जरूरत है। असद उमर ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि NCOC के इजलास में सिंध हुकूमत उन तमाम मामलात पर तफसीली मुशावरत करेगी और ऐसी हिकमत अमली वज़ा होगी जिसमें रियासत के सब सतून मिलकर सिंध के अवाम की सेहत और रोजगार दोनों का दिफा करें। उन्होंने कहा कि कौमी हम आहंगी से मुरतब हिकमत अमली ने अल्लाह के फजल से कोरोना की 3 लहरों को शिकस्त देने में कामयाबी दिलाई। अगर हर सूबा अपनी मर्जी के फैसले और सिर्फ अपने वसाइल पर इन्हिसार करता तो कभी भी ये कामयाबी ना हासिल होती। वजीर मनसूबा बंदी ने कहा कि 1 साल की कारकर्दगी के बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एक कौमी प्लेटफॉर्म है जिसके फैसलों में सियासत का कोई अमल दखल नहीं और तमाम फैसले कौमी बेहतरी को सामने रखकर किए जाते हैं। पाकिस्तान की कोरोना हिकमत अमली से अवाम की सेहत और रोजगार दोनों का दिफा किया गया और इसको दुनिया में पजीराई हासिल हुई। असद उमर ने कहा कि NCOC फोरम पर जमीनी हकाइक का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद फैसले किए गए। इस प्लेटफॉर्म में तमाम वफाकी सिविल और मिलिट्री इदारे और सूबे मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना की मस्बत केसेस की शरह 8.46% रिकॉर्ड की गई। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे में मुहलिक वायरस के 4,950 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 65 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 2,96,48,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हम सब की कौमी जिम्मेदारी है कि कोरोना वबा से बचने के लिए SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल के साथ साथ हाथ को 20 सेकंड तक वक्फे वक्फे से धोएं। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम के वक्त मुकम्मल लॉकडाउन की बातें नामुनासिब हैं। हमने कोरोना वायरस की पहली 3 लहरों का कामयाबी से मुकाबला किया। जब हमारी हिकमत अमली कामयाबी से हमकिनार हो रही है तो इसे बदला नहीं जा सकता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सूबाई हुकूमतें इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। सूबों को वफाकी हुकूमत की गाइडलाइंस और NCOC की हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। सिंध जो है वो पाकिस्तान की मईशत की शाहरग है। जब मईशत ऊपर जा रही है उस वक्त आप एक कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जो बड़ी नामुनासिब बात है। और इसके ऊपर आर्टिकल 149, आर्टिकल 151 और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। आप इनफरादी फैसले नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत और NCOC की जो हिकमत अमली है आप उससे बाहर नहीं जा सकते और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी हिकमत अमली बनाएं वो NCOC की मंजूरी से वफाकी हुकूमत की गाइडलाइंस के ऊपर आप जो है वो बनाएं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि विफाक कोरोना वायरस के खात्मे से मुताल्लिक सूबाई हुकूमतों से हर मुमकिन ताउन कर रहा है। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर सनतों को खोले और मेहनत कश तबके को तंग न किया जाए। आप इंडस्ट्री फौरी तौर के ऊपर जो है वो खोलें और इसी तरीके से जो ताजर तबका है, जो हमारे कमज़ोर लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, उनको आप उनकी मईशत को इतना स्क्वीज ना करें, इतना तंग ना करें कि उनकी कमर टूट जाए। आप जो आपको हिकमत अमली दी जा रही है आप उसके ऊपर अमल करें। अगर आप इतने बड़े बुजुर्ग महर होते, इतने अक्लमंद होते तो आज कराची की हालत ही ना होती। अगर आपने SOPs प्रॉपरली लगाई होती, SOPs के ऊपर अमल दरामद किया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती। लेकिन बहरहाल इस बहस में पड़े बगैर कि क्या गलती है क्या नहीं है, हम पूरा जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं उनके पीछे खड़े हैं। वफाकी हुकूमत उनको पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन सूबाई हुकूमतें इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबाई हुकूमत शहरियों को कोरोना की चौथी लहर से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है।
शहरियों की हिफाजत के लिए हुकूमत ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करना शहरियों के मफाद में है। SOPs पर अमल करके शहरी न सिर्फ खुद कोरोना से महफूज रह सकते हैं बल्कि दूसरों को भी महफूज बना सकते हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना सबसे मौसर है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चौथी लहर के बायस मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ तो एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ सकता है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाबंदियों से बचने के लिए शहरियों को एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। शहरियों से अपील है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले बरकरार रखें। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बाद शहरियों को संजीदगी दिखाना होगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहरी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में हुकूमत का साथ दें और जिम्मेदारी का मुजाहिदा करें। उन्होंने कहा कि आवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाया जाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात से निपटने के लिए हमें क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान विजन को आगे बढ़ाना होगा। ऐवान सदर में मौसम बरसात की शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाने की तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि हम पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब वोट के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बना रहे हैं। मुहिम के तहत ऐवान सदर के अहाते में तकरीबन 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हारून इलाही तूर। 10 अरब दरख्त उगाने के हदफ को आगे बढ़ाते हुए इस साल मौसम बरसात में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम जारी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौम खास तौर पर नौजवानों पर जोर दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से बच सके और हमारी आइंदा नस्लें महफूज हो। बेइंतहा जरूरी है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को अपने जहन में रखें। पाकिस्तान सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर मेल्ट सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर ये फॉरेस्ट्री जो इन्होंने शुरू कर दी, ये वोट्स के लिए नहीं की थी। कीप इमेजिनिंग द फैक्ट कि जब ये इन्होंने बिलियन ट्री सुनामी किया था उसका ताल्लुक वोट से कोई था ही नहीं। दिस इज अ डायरेक्शन जो रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप कौम की अगली नस्लों के लिए डायरेक्शन तय करती है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की अपना खास वलवला कि वो कुदरत के करीब ज्यादा रहना चाहते हैं, खुद भी जिंदगी भर यही किया और अप्रिशिएट किया। और आप लोग जिस तरह से कुदरत को अप्रिशिएट करें तो हैट्स ऑफ टू योर यंगस्टर्स हु आर हियर टुडे एंड वी वांट यू टू टेक दिस बर्डन एंड मेक पाकिस्तान ग्रीन एंड क्लीन। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि कोरोना वबा के दौरान शजरकारी के लिए जबरदस्त काम हुआ। उन्होंने कहा कि माहौल को साफ और सरसब्ज़ शादाब बनाने से सेहत को फरोग मिलेगा और मुल्की मईशत तरक्की करेगी। इससे पहले सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर के सब्जाजार में मौसम बरसात की शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। सदर मुमलिकत की अहलिया बेगम समीना अलवी ने भी पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। तकरीब में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शजरकारी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ठोस अज़्म का इजहार किया। मुआविन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम और वजीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को 10 बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत को बताया गया कि 10 अरब दरख्त उगाने का हदफ टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे 85,000 मुलाजमतें पैदा हुई हैं। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ करती है। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी की दावत पर अरब पार्लियामेंट के सदर आदिल बिन अब्दुल रहमान अल असोमी 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। अरब पार्लियामेंट वफ्द का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी और दीगर आला सियासी क़यादत से मुलाकातें करेगा। इदारा जाती ताउन के फ़रोग़ के लिए अरब पार्लियामेंट और पाकिस्तान के ऐवान बाला के माबैन बाहमी समझौतों की याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। सेनेटर बराए मेहमानदारी सना जमाली ने एयरपोर्ट पर पार्लिमानी वफ्द का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सेनेटर सना जमाली ने कहा कि अरब पार्लियामेंट एक इंतहाई अहम फोरम है जिसका मकसद दो तरफा ताउन और बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए राहें हमवार करना है। वजारत खजाना ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 35 पैसे इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल ऑयल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है।
वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला वहाँ के अवाम ने करना है। अफगान हुकूमत और तालिबान को मिलकर मामलात आगे बढ़ाना होंगे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में किसी मुसल्लत करदा हुकूमत के हामी नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान मसले का सियासी हल और पायदार अमन का क़याम चाहता है। वजीर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगान क़यादत समेत तमाम स्टेक होल्डर से राबते में है। चीन, रूस, तुर्की, ईरान और दीगर मुल्कों से बात करके हम आगे बढ़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश है। यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट ने भी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार करते हुए खत इरसाल किया है। एक सवाल पर वजीर खारिजा ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के बाद तहरीक इंसाफ अब आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाने जा रही है। अवाम की हिमायत से सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अमेरिका को अड्डे देने का बाब बंद हो चुका है। अमेरिका के मुशीर कौमी सलामती जैक सलवान के साथ मुस्बत बातचीत हुई, ताहम अड्डे देने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मुलाकात में दो तरफा तिजारत, दिफाई शोबे में ताउन और अफगानिस्तान में अमन के हवाले से गुफ्तगू हुई है। मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल से बराह रास्त मुतासर होता है। अफगानिस्तान में अमन के लिए तमाम अफगान धड़ों को मिलकर बैठना होगा। मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में अमन के लिए किरदार को दुनिया सराहती है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी का मसला है। बहुत अच्छी मुलाकातें हुई हैं। सारी हासिल गुफ्तगू में तमाम लोगों से की, बिकॉज वी वांट टू बी प्रोएक्टिव इन एक्सप्लेनिंग कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है चीज़ों पे और हम कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को आगे, और उसमें पाकिस्तान और अमेरिका कहाँ कहाँ मिलकर काम कर सकते हैं, कर रहे हैं और बेहतर करना है, कैसे करना है। हमारा एक ही मकसद है इस वक्त अफगानिस्तान में, दैट इज पीस, और उसकी दो वजह। एक वजह यह है कि अफगान पिछले 40 साल से एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कई दफा मैं देखता हूँ कि बात हो रही होती है कि अफगानिस्तान का क्या होगा, वहाँ हमारे भाई बहन हैं जिनका मकसद ताल्लुक है द वर्ल्ड ओज इट टू देम कि वहाँ पे अमन है। और दूसरा ऑफकोर्स पाकिस्तान इज ए डायरेक्ट अफेक्टेड। आप जानते हैं 3 मिलियन रेफ्यूजीज और ज़्यादा उससे अनरजिस्टर्ड तादाद पहले भी थी, और सारी दुनिया कह रही है कि खर्चा ये है कि अगर हालात खराब हुए तो फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस न हो। तो बाकी तो सिर्फ कह के और सोच सकते हैं पाकिस्तान इज दी इफेक्टिव। अगर दोबारा से कोई इस तरह का मामला होता है तो जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए तो ये एक नामुमकिन सिचुएशन है। हम इस दफा इस पोजिशन में नहीं है कि हम और अफगान रेफ्यूजीज में, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी बंदोबस्त होना है पहली चीज ये कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आनी देनी चाहिए जिसमें कोई ये मामला शुरू भी हो, लेकिन अफगानिस्तान में ये बंद निकालने की जरूरत है। सो फॉर अस इट इज नॉन नेगोशिएबल कि अफगानिस्तान में अमन आए। अब सवाल ये कि अमन कैसे आना है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, और वो ये है कि अफगान कुव्वतें आपस में बैठ के एक सियासी हल से निकली, वो जो भी हल होगा वो पाकिस्तान को कबूल होगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान ने तकरीबन 200 अजला पर कब्जा करने के बाद बड़े शहरों का रुख कर लिया है और 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में शदीद लड़ाई हो रही है, जिनमें हरात, हेलमंद, तुखार और कंधार शामिल हैं। तालिबान हरात शहर में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने शहर में वाक़ अफगान फोर्सेज की बैरूनी चौकियों पर हमले किए हैं। तालिबान ने हरात एयरपोर्ट का मुहासरा कर रखा है और तालिबान पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात भी मिली हैं। तालिबान ने सूबा हेलमंद के मरकजी शहर लश्करगाह पर भी हमले किए हैं और वो गवर्नर हाउस से चंद 100 मीटर फासले पर मौजूद हैं। कंधार में तालिबान ने लोगों के घरों में मोर्चे बना लिए हैं और शहर में होने वाली लड़ाई गुज़श्ता 20 साल के दौरान शदीद तरीन लड़ाई है। ख्याल रहे कि तालिबान कंधार को अपना आरजी दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। सूबा कंधार के मरकजी शहर तालकान पर भी तालिबान ने कई अतराफ से हमले किए हैं और ये इलाका मैदान जंग बना हुआ है। सरकारी फोर्सेज ने दावा किया है कि उन्होंने तालिबान को पीछे धकेल दिया है और इस कार्रवाई में कई तालिबान हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान के सूबे नूरिस्तान में शदीद सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 113 हो गई है। दर्जनों अफराद अभी तक लापता हैं। सैलाब से 170 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि भारत खित्ते में दहशतगर्दों और अमन दुश्मनों का सहूलतकार है। इन ख्यालात का इजहार गवर्नर पंजाब ने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातों के दौरान किया।
انہوں نے کہا کہ اسرائیلی اور بھارتی افواج فلسطین اور کشمیر میں دہشت گردی کر رہی ہیں۔ دنیا میں امن کے لیے کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ کل نہیں آج ہی حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ہی کشمیریوں کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے بھی سفیر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت افغان امن عمل کے خلاف بھی سازشوں سے باز نہیں آ رہا۔ پاکستان امن کے ساتھ ہے اور ملک کی دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کریں گے۔ عوام ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے ساتھ نہیں، حکومتی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک کے اداروں میں اصلاحات کے لیے موجودہ حکومت عملی اقدامات کر رہی ہے۔ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی۔ سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سپوری نے پلوامہ میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوجوانوں کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ دونوں نوجوانوں کو گزشتہ روز ناگورن تارسر میں نام نہاد محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کر دیا گیا۔ سینئر حریت رہنما نے سوپور کے علاقوں وارپورہ، ڈانگپورہ اور براج کلاں میں قابض فورسز کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں شدت اور اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر میس موومنٹ نے مقبوضہ علاقے اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے بارودی سرنگیں برآمد کرنے کے 2 الگ الگ مقدمات کے سلسلے میں شوپیاں، اسلام آباد، بانہال اور جموں سمیت مختلف علاقوں میں 14 مقامات پر چھاپے مارے۔ مقبوضہ ریاست کے مختلف علاقوں میں چسپاں کیا گیا پوسٹرز میں 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا گیا ہے۔ بھارتی حکومت نے اس روز جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے علاقے کا سخت فوجی محاصرہ کر دیا تھا۔ سری نگر میں اسلامی تنظیم آزادی کے چیئرمین عبدالصمد انقلابی نے کہا ہے کہ ریاستی عوام نے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو تسلیم نہیں کیا اور وہ بھارت سے مکمل آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ برسلز میں کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سید نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرنے پر یورپی ارکان پارلیمنٹ کی تعریف کی ہے۔ بھارتی حکومت کے متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور مشتعل کسانوں نے اپنی تحریک کا رخ BJP لیڈروں کی جانب پھیر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق راجستھان کے شری گنگا نگر میں کسانوں نے BJP لیڈر کیلاش میگھوال پر حملہ کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ BJP لیڈر کو بچانے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا۔ اتر پردیش کے ضلع باپور میں کسانوں نے BJP کے رکن اسمبلی کمل سنگھ کو گھسیٹ کر سیوریج کے گندے نالے میں پھینک دیا۔ پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور دوسری ریاستوں میں بھی کسان تنظیمیں نریندر مودی کی فاشسٹ جماعت BJP کے ارکان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کر رہی ہیں اور حکمران جماعت کے ارکان چھپتے پھرتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کانگریس، شرومنی اکالی دل اور بہوجن سماج پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا اور مرکزی حکومت سے تینوں زرعی قوانین واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت میں 2 ریاستوں آسام اور میزورام کے وزرائے اعلیٰ آمنے سامنے آ گئے۔ میزورام کے وزیر اعلیٰ نے آسام کے وزیر اعلیٰ کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کرا دیا۔ دونوں وزرائے اعلیٰ میں کشیدگی کے باعث دونوں ریاستوں کے درمیان تجارت رک گئی اور ریاستی سرحد پر ٹرک پھنس کر رہ گئے۔ ریاست آسام نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ میزورام کا سفر نہ کریں۔ ٹرکوں میں موجود سامان بارش کے باعث خراب ہو رہا ہے۔ پیر کے روز دونوں ریاستوں کی پولیس کے درمیان لڑائی میں 6 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ بھارت کے صوبہ بہار میں نکسل علیحدگی پسندوں نے ایک ریلوے اسٹیشن پر حملہ کر کے ریلوں کی آمد و رفت روک دی۔ علیحدگی پسندوں نے اسٹیشن ماسٹر کو بھی یرغمال بنائے رکھا۔ پولیس کی وردی میں ملبوس نکسل علیحدگی پسند پولیس کی وردیوں میں پٹنہ کولکتہ لائن پر چورا ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔
आपके लिए चलेंगे नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पर इस वक्त वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस तरीके से वबा का फैलाव हो रहा है, अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, हमारे कितने मरीज जो हैं वो अस्पतालों में आ रहे हैं, कितने उसमें से क्रिटिकल केयर के अंदर हैं, यानी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसमें वेंटिलेटर पे कितने, तमाम चीज़ें जिसका जायज़ा लिया जाता है, उस सबको हमने देखा, उसका तज्जिया भी किया। जो पहले लहर जितनी गुजरी हैं उनके साथ भी उनकी उसका मुवाजना करके देखा, और वो सब देखने के बाद कुछ हमने सिफारिशात के ऊपर भी बातचीत की है, और अब वो सूबों के साथ जो है हम वो मुशावरत करेंगे और कल इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म को अपनी सिफारिशात भी पेश करेंगे। तफसीली जो अहकामात हैं वो तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म जो एक दफ़ा मंजूरी देंगे उसके बाद ही वो जारी किए जाएंगे, लेकिन जो हमारा अभी तक तरीक़ेकार रहा है, एक टारगेटेड तरीके से हम बंदिश लगाते हैं और उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की तफसील साथ गौर करके ताकि कोई ज़्यादा उसकी वजह से परेशानी भी लोगों को ना हो, और साथ साथ वबा के फैलाव के ऊपर भी रुकावट लाई जा सके, और साथ कम से कम लोगों की रोजगार पर असर अंदाज होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वबा के फैलाव को रोकने में कौन से काम असरअंदाज हो सकते हैं, वो तमाम जो हम पहले 3 दफ़ा 3 लहर के अंदर आप देख चुके हैं, और आपकी यानी अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की शराकत के साथ, आपकी मुआवनत के साथ अल्लाह ताला ने करम किया है, और हर दफ़ा हम इसको रोकने में कामयाब हुए हैं, और हमने ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होते हुए देखी पाकिस्तान में जैसी हमारे ज़्यादातर हमारे इस खित्ते के अंदर नज़र आई है। पहले आपने देखा था ईरान में जिस किस्म की तबाही आई, और अब दोबारा से वहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई हैं, सूरत हाल ख़राब है। भारत के अंदर तो जो हुआ वो तो देख के लोग बाकायदा खौफजदा हो गए थे, किस तरीके से भारत में अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, फुटपाथ पे पड़े हुए थे मरीज। आजकल पिछले चंद हफ्तों से बांग्लादेश में बहुत ख़राब सूरत हाल है, और काफ़ी अरसे से तकरीबन रोज़ाना जो है वहाँ, हालांकि उनकी आबादी हमसे को 30% कम है, लेकिन 200 से ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं। इंडोनेशिया में पिछले चंद हफ्तों से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात हैं, उनकी आबादी हमसे कुछ थोड़ी ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और वहाँ पे 1500, 1600, 1700 हलाकतें हो रही हैं। अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी से इस वबा में इजाफा आया है, तो जैसे मैंने कहा कि तकरीबन तमाम, उससे पहले नेपाल के अंदर, तो बाकी दुनिया में तो हो ही रहा है, लेकिन हमारे खित्ते के अंदर हमने देखा एक एक करके ममालिक जो है, इसी तरीके से मशरकी एशिया जो है वहाँ पर निस्बतन बेहतर हालात रहे थे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है मलेशिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर, इंडोनेशिया मैंने पहले जिक्र किया, इन तमाम के अंदर भी बढ़ती जा रही है। और इसकी जो ये वाली जो लहर है, इसकी बुनियाद जो बन रही है वो भारतीय वेरिएंट है। वो जो भारत से वेरिएंट शुरू हुआ इस कोरोना का, वो इंतहाई तेज़ी से फैलता है। इससे पहले जो बरतानवी जो वेरिएंट था, वो शुरू में जो कोरोना का जो मर्ज था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलता था, तकरीबन को 70-60-70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता था, और ये जो है भारतीय वेरिएंट, ये उससे भी ज़्यादा कुछ 60-70% ज़्यादा बरतानवी वेरिएंट से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे हमने कहा कि बड़े टारगेटेड तरीके से, सिलेक्टेड तरीके से, और वो भी हम शहर टारगेट करेंगे जहां पर हमें ज़्यादा खदशा नज़र आ रहा है, जो उमूमी तौर पर बड़े शहर हैं, उसका भी फैसला कल वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग के बाद हो जाएगा कि कौन से हमने कर दे। तो एक तो ये हिस्सा था जिसका आपको बताना चाहते थे, और आपसे एक दफ़ा फिर अपील करना चाहते हैं कि सबसे बड़ा हथियार जो है वो किसी हुकूमत के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में। एक आम पाकिस्तानी, एक इंफरादी, अगर आप बड़ी सादा सी हमारे डॉक्टर साहिबान ने जो तदाबीर बताई नहीं उस पर अमल करेंगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये मास्क पहनना है आपने जब भी आप भीड़ में हो या ऐसी बंद जगह पर हो, आपने ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर जाने से गुरेज करना है, और थोड़ा सा फासला रखना है लोगों के साथ जिस वक्त आप एक भीड़ वाली जगह पे हो। इतनी सादा सी चीज़ें हैं, इससे लोगों की सेहत भी का भी हिफाजत हो सकती है। इससे सिर्फ आपकी नहीं, आपके आस पास के लोग जो हैं, तो याद रखिए ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, और इसमें हो ये रहा है घर में एक को लगता है, एक फर्द को लगता है तो एकदम से पूरे घर के अंदर फैल जाता है। आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे, उनका एहतियात करना, उनका ख्याल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। रास्ता इधर से निकलने का जो है वो वैक्सीनेशन ही है, और आपने देखा कि मुल्क के अंदर
वफाकी हुकूमत ने एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो टोटल मंजूरी दी गई है, जितना ये पैसा इस वैक्सीन को खरीदने के लिए वफाकी हुकूमत खर्च करने जा रही है, वो तकरीबन 200 अरब रुपए के करीब है और अरबों रुपए की वैक्सीन मंगवाई जा चुकी है, तेजी से लगवाई भी जा रही है। 2600 वैक्सीनेशन सेंटर मुल्क के अंदर पूरे मुल्क के तूल अर्ज में कायम कर दिए गए हैं। तकरीबन 3000 मोबाइल यूनिट्स हैं जो लोगों के घर घर जाकर और उनके इलाकों में जाकर वहां पर वैक्सीन लगा रहे हैं और उसका नतीजा ये निकला है कि आपने देखा कि जो पहले 1 करोड़ डोज वैक्सीन की लगाई गई पाकिस्तान में, उसको 113 दिन लगे थे 1 करोड़ वैक्सीनेशन करने के लिए, और ये अभी जो हमने आखिरी 1 करोड़ किए हैं, अब तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है हमारी वैक्सीनेशन। तो ये जो 1 करोड़ हमने आखिरी लगाया है, ये 1 करोड़ जो हमने लगाया है इसको सिर्फ 16 दिन के अंदर हम यहाँ पर लगाने में कामयाब हुए हैं। तो एक बहुत ज्यादा तेजी आई है। पिछले 6 दिन ये जो हफ्ता हमारा गुजरा है, पीर से लेके हमारा हफ्ते तक का जो अदाद शुमार आए हैं, तो सिर्फ इन 6 दिन के अंदर हमारा 50 लाख डोजेज लगाई गई हैं, 50 लाख वैक्सीनेशन की गई हैं और पिछले 6 दिन में हर दिन जो है वो एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन रही है। पहले 6,80,000 लगे, फिर 7,78,000 लगे, फिर उसके बाद 8,50,000 के करीब लगाए गए, फिर 9,04,000 और कल 9,34,000 वैक्सीन, और तमाम सूबों के अंदर नए रिकॉर्ड टाइम किए जा रहे हैं तकरीबन रोजाना की बुनियाद के ऊपर। आखिरी चीज जिसका मैं जिक्र करूंगा, इसलिए आपको मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक नहीं लगाई वो भी जल्द अज जल्द जाके लगाएं। ये तमाम इंतजाम आपके लिए किए गए हैं, आपकी सेहत की हिफाजत के लिए वफाकी हुकूमत ने ये पूरे वैक्सीन का निज़ाम बनाकर सूबों के जरिए अब ये लगाई जा रही है। और इसी से मिलता जुलता मैं आखिरी चीज, क्योंकि पिछले कोई 48 घंटे से बहुत ज़्यादा बातचीत भी हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि क्यों ये सारा निज़ाम जो बनाया गया है उसमें ये एनसीओसी का क्या रोल है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी इफादियत क्या है। हमसे बहुत ज़्यादा अमीर ममालिक जो हैं वहाँ पर हमने देखा कि जो आप अमेरिका के अंदर देख लें, बहुत बड़ी हद तक बरतानिया में यही मसला देखा गया और बड़े बड़े ममालिक के अंदर, अमीर ममालिक के अंदर, कि क्योंकि मरबूत निज़ाम नहीं था, क्योंकि एक जगह नहीं थी जहाँ पे तमाम मालूमात आ रही हैं, तज्जिया हो रहा है और फिर वहाँ से एक जगह से फैसला निकल के पूरे मुल्क के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और फिर उसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो जो कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की अपने लिए हदफ सेट करने के लिए, वो बड़े बड़े ममालिक नहीं कर सके। इसलिए ये जो निज़ाम बनाया गया, सबने इसकी इफादियत की। इसके अंदर वफाक और वफाक में सिविल और मिलिट्री तमाम जितने कंपोनेंट्स हैं वो साथ यकजा हुए, यहाँ पर तमाम सूबे यहाँ पर आए और इस एक प्लेटफॉर्म से, कौमी प्लेटफॉर्म जो बना, वहां से ये फैसला साजी की गई और उसके अंदर वफाक भी शराकतदार है, सूबे भी शराकतदार हैं और सबने इसका फायदा देखा। इसलिए जरूरी है कि ये जो 15 माह से इतना कामयाब निज़ाम हमारा चला है, हम इसको इसी तरीके से, जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं यू डोंट फिक्स व्हाट एंड ब्रोकन, जो चीज टूटी भी नहीं है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज जो कामयाब है, जो दुनिया में हर तरफ से तारीफ हो रही है, वो इंडेक्स कह रहा है कि जी दुनिया के अंदर 3 बेहतरीन ममालिक जिसने दफा किया उसमें से पाकिस्तान है। तो ये जरूरी है कि इसी तरीके से हम साथ चलें। खास तौर पे मैं वैक्सीनेशन का आपको समझाना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन की वजह से और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये एक सेंट्रल एक फोकल पॉइंट हो जो कि एनसीओसी का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वैक्सीनेशन कामयाब करने के लिए 3 मुख्तलिफ काम आपने करने हैं। आपने एक तरफ लोगों को तरगीब देनी है और उनको कहना है कि आप वैक्सीन लगाने के लिए आएं, ये पहला उसका हिस्सा है कामयाबी का। दूसरा उसका हिस्सा ये है कि उतनी तादाद में वैक्सीन आप खरीद कर मुल्क के अंदर लाएं ताकि वो लोग जो वैक्सीन लगाने के लिए आए उनके लिए वाफिर मिकदार के अंदर वैक्सीन दस्तयाब हो और उसमें कोई कमी न नजर आए। और तीसरा हिस्सा वो है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो निज़ाम जिसके जरिए ये वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी, वो वैक्सीनेशन सेंटर और मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट जिनका मैंने आपको जिक्र किया, वो 3। अब ये तमाम अगर आपके पास मालूमात नहीं है
अगर आपको ये नहीं पता कि आज मेरे पास वैक्सीन इन्वेंट्री कितनी है और पूरे मुल्क के लिए, और कल मैं कितनी खरीदने जा रहा हूँ, मेरे पास 3 हफ्ते के बाद कितनी आएगी, मेरे पास 6 हफ्ते के बाद कितनी आएगी, तो आपको नहीं पता मैंने किस रफ्तार से आगे तेजी से आगे बढ़ाना है। इसी तरीके से और अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आपको ये सूरत हाल नजर आएगी कि लोग टीका लगवाने के लिए जाएंगे और वहां पे वैक्सीन नहीं आएगा। ये पूरे तकरीबन 6 माह का अरसा हो गया है। इस 6 माह के अरसे के अंदर इतने पेचीदा कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन के होते हुए पूरे पाकिस्तान के तूल वर्ग पे फैला हुआ, जैसे मैंने कहा, और ये मूविंग पार्ट्स 3 मुख्तलिफ चीजों को साथ करते हुए सिर्फ 3 या 4 दिन का अरसा आया था जिसके अंदर हमें वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ा था। शिपमेंट्स डिले हुई थी। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि इतनी बड़ी तादाद के ऊपर वैक्सीन लगने के बावजूद कमी कहीं महसूस नहीं हुई है, और उसकी वजह ही यही सेंट्रलाइज प्लानिंग है। इसी तरीके से अगर आपको ये नहीं पता कि मैं आगे कितना डिमांड जनरेट, यानी लोगों में कितना आगाही फैलाकर मेरी कामयाबी हो रही है, और जो मैं फैसले करते जा रहा हूँ या ये एक मरकजी लेवल से जो फैसले हो रहे हैं और लोगों तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है, तो कितने लोग आएंगे, तो फिर आपको ये नजर आता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए, उनको वहां पे जगह नहीं मिल रही अब, घंटों घंटों उनको इंतजार करना पड़ रहा है। इसलिए तमाम चीज को जब तक एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी पूरी इन तीनों पहलू को सामने रखते हुए फैसला साजी ना करे तो आपके लिए, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो वबा के फैलाव को रोकने के लिए भी, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस कामयाबी से, क्योंकि ये वबा जो है ये बॉर्डर नहीं देखती, इस वबा को ये नहीं पता कि कहाँ खैबर पख्तूनख्वा खत्म हो रहा है और कहाँ पंजाब शुरू हो रहा है, इसको ये नहीं नजर आता कि सिंध किधर खत्म हो रहा है, बलूचिस्तान किधर शुरू हो रहा है, ना ये मुल्कों की कोई सरहद देखती है, इसको भारत, पाकिस्तान और ईरान में कोई फर्क और तमीज नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान के हर हिस्से को असरअंदाज कर सकती है, और पाकिस्तान जुड़ा हुआ है तमाम बाकी दुनिया के ममालिक के साथ भी। तो मेरा मकसद आज आपको बताने का ये था कि ये जो सारा निज़ाम बनाया गया है और इसकी जो कामयाबी हासिल हुई है, उसका एक खास अंतर ये जो है, ये सेंट्रलाइजेशन जो है, यानी तमाम चीजें एक मरकज पर आकर और वहां से फैसले हों, ये इंतहाई जरूरी है। और इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे भी ऐसे ही लेके चलेंगे। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, सारी कौम को पता है कि एनसीओसी के प्लेटफॉर्म का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। यहाँ पर जब डिजीज शुरू हुई, जब वबा शुरू हुई थी, 2 मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें थी, एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत, एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत, 3 तहरीक इंसाफ की हुकूमतें। तो कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तानी सब एक है, एनसीओसी एक ही नजर से सारे पाकिस्तान को देख रही है। और जिस तरीके से 15 माह से कोशिश की है, कामयाबी हासिल हुई, अल्लाह ताला ने फजल किया है, अल्लाह ताला की रहमत से कामयाबी हासिल हुई है, दुनिया ने पजीराई की है। इंशाअल्लाह ताला अगर इसी फॉर्मूला के तहत हम चलते रहेंगे तो मजीद आगे भी कामयाबी हासिल होगी। अब मैं जरा फैसल सुल्तान से दरख्वास्त करूंगा कि आपको जो वबा की सूरत हाल है, अस्पतालों में क्या हो रहा है, उसकी जरा तफसील बताएं। बहुत शुक्रिया जी। जैसे असद साहब ने मजबूत फैसला साजी के बारे में बताया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मजबूत फैसला साजी के पीछे जो एदाद शुमार हैं, वो भी उसी एक मजबूत और ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठे होते हैं। उसको इस कमरे में एनालिसिस किया जाता है, देखा जाता है, और इस सारे एनालिसिस और सोच विचार के बाद ही हम आपके सामने कुछ फैसले और रिकमेंडेशन रखते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता हफ्ते में एवरेज औसत अगर देखी जाए तो तकरीबन दिन के 2-2.5 हज़ार केसेस के करीब डिटेक्ट हो रहे थे, और आपने देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में ये तादाद जो है वो 5,000 के करीब पहुँच गई। जो पॉजिटिविटी की शरह है वो अब सारा पाकिस्तान उसको देखता है, क्योंकि सब सीख गए हैं कि उसको क्या करना है, वो भी तकरीबन 8.8 है, और ये नेशनल पॉजिटिविटी है। इसका मतलब है जब हम इसमें बारीकी में जाएं और इंडिविजुअल शहरों को और सूबों को देखें तो वो इससे भी ज़्यादा हमें इसका शुमार नज़र आता है। अब इस पॉजिटिविटी के बाद जो बहुत अहम चीज़ है, और फिर से मैं आपको मेंशन करूंगा कि ये चूंकि एदाद शुमार यहाँ एक जगह पे आके दिखते हैं और प्रोविंस वाइज होते हैं, शहर के हिसाब से होते हैं, तो हमें हर जगह की सूरत हाल बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होती है। और 1-2 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गुज़िश्ता चंद दिनों में जो औसत फिगर है, तकरीबन डेली एडमिशन की, यानी हर रोज कितने ऐसे मरीज हैं जो कोरोना वायरस की वबा लेके, बीमारी लेकर अस्पतालों में दाखिले के लिए पहुंचते हैं,
उनकी तादाद तकरीबन 480 से 500 के करीब पहुंच चुकी है। और अगर ये देखें कि उनमें से रोजाना के बेसिस पे किसी एक वक्त पे कितने लोग अस्पताल में क्रिटिकल केयर में दाखिल होते हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही होती है, तो वो तकरीबन 3200 के करीब है। इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ना सिर्फ के बीमारी बढ़ी है, ये चौथी वेव जो है कोरोना वायरस की, ये वाज़ेह तौर पर हमारे सामने, हम उसके थ्रू गुजर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो वो दबाव डाल रही है हेल्थ केयर सिस्टम पे, वो भी बड़ा वाज़ेह है। ये दबाव इस वक्त बहुत क्लियरली आपको कराची में तो नजर आ रहा है, 55% के करीब जो क्रिटिकल केयर के बेड हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, और उसमें इजाफे की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मौजूदा फिगर है उसके मुताबिक तकरीबन आधे जो हैं उसमें से उस पर लोग मौजूद हैं। लेकिन उसके अलावा ये दबाव दीगर शहरों में भी नजर आ रहा है, मिसाल के तौर पर अब्बाबाद में, इस्लामाबाद में और दीगर। इसी सूरत में और इसी पस मंजर में जैसे असद साहब ने कहा कि हम कौमी लीडरशिप के साथ कल इस मजीद मुशावरत करेंगे और कुछ आगे की गुजारिशात और सिफारिशात पेश करेंगे ताकि हम इस वबा का मुंह मोड़ सके, रुख मोड़ सके। आखिर में वैक्सीन का जिक्र असद साहब ने बहुत डिटेल में बता दिया, मैं सिर्फ आपको इतना बताता चलूं कि वाज़ेह तौर पे जो हमारे यहाँ वैक्सीन लग रही हैं अदाद शुमार के मुताबिक, अगेन यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे तमाम अदाद शुमार इकट्ठे करने का फायदा ये है कि हमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को लगी हुई वैक्सीन, और जो बीच में से अगर केसेस होते हैं अनवैक्सीनेटेड लोगों में या जो चंद केसेस वैक्सीनेटेड में भी हो जाए तो उसके अदाद शुमार हमारे सामने आ जाते हैं। और मैं आपको बताते हुए बड़े मुझे खुशी है कि कम से कम 1/10 का फर्क है, यानी अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो आपको बीमारी होने का जो रिस्क है वो कम से कम 10 गुना कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ को पॉइंट करती हैं कि हम वो तमाम जो हिफाजती इक़दामात हैं, मास्क का पहनना, तो फासला रखना, कमरों का हवादार रखना, हजूम में ना जाना, और उसके साथ साथ वैक्सीन को लगवाना जो है, ये वही तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह इस चौथी वेव से भी निकल पाएंगे। आपकी ताउन का और आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना सूरत हाल के हवाले से मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं, वबा के फैलाव को रोकने के लिए ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं जिससे अवाम का रोजगार कम से कम मुतासिर हो। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। अवाम के ताउन से कोरोना का फैलाव रोकने में कामयाब हुए हैं। अवाम से अपील है कि कोरोना SOPs पर अमल करें, जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करवाएं, समाजी फासलों का ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी हवास बाख्ता नजर आते हैं। उन्हें अब 2023 तक कोई इलेक्शन मुहिम नजर नहीं आ रही। अपने बयान में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो के पास धांधली के कोई सबूत हैं तो वो मुतलका फोरम्स पर रुजू करें। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में पैसों के इस्तेमाल की सियासत जरदारी और नवाज शरीफ ने मुतारिफ कराई। फर्रुख हबीब ने कहा कि पाकिस्तान में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स में बिलावल जरदारी के वारिद ने रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान के 3 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वोट के जरिए पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में अपनी बुरी तर्ज हुक्मरानी से सनत और आम आदमी के रोजगार को बंद कर रही है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि यकतरफा लॉकडाउन के बजाय NCOC के फोरम से कौमी सतह पर कोरोना वबा से निमटने के हवाले से फैसला साजी को अहमियत देना होगी। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के जिम्मेदारान को दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात का कोई एहसास नहीं, वो ऐसी गलती पहले भी कर चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने अपने एक और ट्वीट में कहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने दुनिया भर में रहन सहन के अखराजात से मुतालिक अपनी सालाना रिपोर्ट 2021 जारी कर दी। रहन सहन के अखराजात के हवाले से पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात ने कहा कि 22,51,99,937 आबादी के साथ पाकिस्तान में रहन सहन के अखराजात 18.58 हैं, जबकि 3,98,35,428 आबादी के साथ अफगानिस्तान में रहन सहन के अखराजात 24.51 हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 1,39,34,09,038 की आबादी के साथ रहन सहन के अखराजात 25.14, उज्बेकिस्तान में रहन सहन के अखराजात 30.25, नेपाल 30.69, नाइजीरिया 31.75, वियतनाम 38.72, मलेशिया 3.9,
46 ब्राजील में 42.64 हैं। रहन सहन के अखराजात के हवाले से दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में केमन आइलैंड में 141.64 और बर्मुडा में 138.22, स्विट्जरलैंड में 122.67 और नॉर्वे में 104.49 है। फरूख हबीब ने कहा कि आलमी इदारे ने हर मुल्क की रेंट इंडेक्स, मुकामी कौमी खरीद, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ग्रोसरी इंडेक्स को मद्देनजर रखकर ये रिपोर्ट तैयार की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में कायदे हिस्से इख्तलाफ। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि कोरोना में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में शब खून मारा। सिंध हुकूमत के फैसले अपने ज़ाती मकासद के लिए हैं। सिंध हुकूमत के ऐसे फैसले कबूल नहीं करेंगे। जामशोरे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत ने एक वैक्सीन तक नहीं खरीदी। 69 लाख वैक्सीन विफाक ने सिंध की आवाम के लिए दी है। उन्होंने कहा कि एक्सपो सेंटर और वैक्सीन भी विफाक में हैं, लेकिन मुलाजमीन को सिंध हुकूमत ने तनख्वाह तक नहीं दी। हलीम आदिल शेख ने कहा कि एक्सपो सेंटर में हजारों लोगों की लाइनें लगी हुई थीं। सिंध हुकूमत के पास फंड थे तो ज्यादा सेंटर क्यों नहीं बनाए। सिंध की वैक्सीन और आवाम के पैसे कश्मीर इलेक्शन पर लगा दिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इंसानों के लिए लग सकता है, कुत्तों पर लॉकडाउन कौन लगाएगा। कुत्ते आजाद फिर रहे हैं, रोजाना शहरियों को काट रहे हैं।